ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کراچی کی صبح ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی، مگر شہروز آفندی کے بنگلے میں ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ لمبے لمبے درختوں سے گزرتی ہوا جب گیٹ کے پاس کھڑی کاروں کو چھوتی تو ان کے شیشوں پر ہلکی نمی جم جاتی۔ اندر ڈرائنگ روم میں بہروز آفندی غصے میں کرسی سے اٹھا اور آواز لگائی، ڈیڈ، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ کمپنی کوئی خیرات کا ادارہ نہیں، آپ ہر گاؤں کی لڑکی کو نوکری پر نہیں رکھ سکتے۔ شہروز آفندی جو 40 سال سے بزنس ورلڈ میں ایک معتبر نام تھے، پرسکون لہجے میں بولے، پروین تمہاری تایا زاد ہے بہروز، اور تمہارے تایا کی امانت ہے، میں نے صرف ایک موقع دیا ہے۔ موقع؟ بہروز طنزیہ ہنسا، وہ لڑکی تو کمپیوٹر آن بھی نہیں کر پائے گی۔ یہ شہر ہے ڈیڈ، یہاں سادگی نہیں قابلیت چلتی ہے۔ شہروز نے گہرا سانس لیا، تمہیں ہر چیز باہر سے دیکھنے کی عادت ہے بیٹا، کبھی کسی کی آنکھوں کے اندر دیکھو، وہی صلاحیت چھپی ملے گی۔ بہروز نے جواب نہیں دیا، بس موبائل اٹھایا اور غصے سے اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے چہرے پر غرور واضح تھا، وہ خود کو کمپنی کا مستقبل سمجھتا تھا، اور کسی گاؤں کی لڑکی کو اس ماحول میں قبول کرنا اس کے لیے ناگوار تھا۔ اسی دن شام کو جب کمپنی کی عمارت کے بڑے شیشے والے دروازے کے پار سے روشنی اندر آ رہی تھی، ایک سلجھی ہوئی مگر سادہ سی لڑکی اندر داخل ہوئی، ہلکے نیلے سوٹ میں، کندھوں پر دوپٹہ، چہرے پر گھبراہٹ مگر آنکھوں میں اعتماد۔ ریسیپشن پر لڑکی نے آہستہ سے کہا، السلام علیکم، میں پروین آج سے جوائن کر رہی ہوں۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر اسے اندر آنے کا راستہ دکھایا، لیکن جیسے ہی بہروز کی نظر اس پر پڑی، اس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ اوہ، تو یہ ہے وہ پروین جس کے لیے ڈیڈ نے سارا سسٹم ڈسٹرب کیا؟ پروین نے مؤدب لہجے میں کہا، السلام علیکم سر۔ بہروز نے سرسری سا جواب دیا، جی وعلیکم السلام۔ آپ HR سے ہدایات لے لیجئے اور کوشش کیجئے گا کہ کوئی غلطی نہ ہو، یہاں لوگ غلطیوں پر برداشت نہیں رکھتے۔ پروین نے سر جھکایا اور چپ چاپ اپنی ڈیسک کی طرف بڑھ گئی۔ 2 دن گزرے اور بہروز نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس کی غلطی پکڑ لے۔ کبھی کہتا یہ فائل غلط ترتیب دی ہے، کبھی طنز کرتا، گاؤں میں شاید ٹائپنگ کا فن نہیں سکھایا جاتا ہوگا، مگر پروین خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نفرت اس کی سادگی نہیں، بہروز کے غرور کی علامت ہے۔ شہروز آفندی اکثر اس کی تعریف کرتے، پروین تمہاری رپورٹ بہت عمدہ تھی، انگریزی بھی کافی اچھی ہو گئی ہے تمہاری۔ اور یہی جملہ بہروز کے لیے زہر بن جاتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا، یہ لڑکی اگر کمپنی میں کامیاب ہوئی تو ڈیڈ اسے مثال بنا دیں گے، اور میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ ایک دن صبح شہروز آفندی نے کانفرنس روم میں سب کو جمع کیا، کل ہماری سب سے اہم میٹنگ ہے، بیرون ملک سے 3 بڑی کمپنیوں کے نمائندے آ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پروین ان کے سامنے ہماری پروجیکٹ پریزنٹیشن دے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر بہروز کی آواز گونجی، وٹ ربش ڈیڈ، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ لڑکی کلائنٹس کے سامنے بولے گی؟ آپ کمپنی کی ریپوٹیشن داؤ پر لگا رہے ہیں۔ شہروز آفندی نے فقط ایک نظر بہروز پر ڈالی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پروین کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف جھلکا، مگر اس نے ہمت باندھ لی۔ بہروز باہر نکلا تو غصے سے دروازہ بند کیا، کل اسے سب کے سامنے ذلیل ہونا ہی ہوگا، پھر ڈیڈ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ لڑکی کس لائق ہے۔ اگلے دن کانفرنس روم میں سب تیار بیٹھے تھے، پروجیکٹر آن، سلائیڈز تیار، باہر سے آئے مہمان میز کے سامنے۔ بہروز نے خود اعتمادی سے کہا، سر اگر آپ کہیں تو میں میٹنگ کنڈکٹ کر لوں۔ شہروز نے مسکرا کر کہا، نہیں بہروز، آج پروین کرے گی۔ دروازہ کھلا، پروین اندر داخل ہوئی۔ وہ پروین نہیں تھی جو پہلی بار ریسیپشن پر کھڑی تھی، آج وہ مکمل پروفیشنل نظر آ رہی تھی۔ نیوی بلو سوٹ، بند جوڑا، ہلکی لپسٹک اور چہرے پر بے خوف اعتماد۔ اس نے مائک تھاما اور روانی سے بولنا شروع کیا، گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آن behalf of Shehroz Group, I welcome you all
Let's begin with the upcoming project proposal for international expansion. कमरे में खामोशी छा गई। बहरोज के चेहरे का रंग बदल गया। उसने हैरत से परवीन को देखा, जो एक एक स्लाइड पर इतनी महारत से बात कर रही थी जैसे बरसों से यह काम कर रही हो। 25 मिनट की प्रेजेंटेशन खत्म हुई और आखिर में तालियों की गूंज गूंजी। बैरोनी कंपनी के नुमाइंदे मुस्कुराकर बोले, मिस्टर शेरोज, योर कंपनीज फ्यूचर सीम्स ब्राइट, स्पेशली विद एम्प्लॉयज लाइक हर। शेरोज अफंदी के चेहरे पर फख्र था। थैंक यू, शी इज माई नीस एंड आवर न्यू प्रोजेक्ट लीड। परवीन ने नजरें झुका ली, मगर बहरोज की आंखें मुसलसल उसे देख रही थी। उसके दिल में पहली बार एहसास हुआ, ये वही परवीन है जिसे मैं गंवार कहता था, या ये कोई और औरत है जिसने अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया। उस रात बहरोज ने देर तक नींद नहीं की। दिल के अंदर एक अजीब सा खला था, जिसे किसी ने उसके गुरूर को छीन कर दिल में नरमी डाल दी हो। अगली सुबह जब वो दफ्तर पहुंचा तो पहली बार उसने परवीन के पास जाकर कहा, गुड वर्क मिस परवीन, वाकई तुमने इम्प्रेस किया हम सबको। परवीन ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया सर, मगर मैंने तो बस अपना काम किया है। बहरोज ने आहिस्तगी से कहा, हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात काम भी इंसान को बदल देता है। परवीन ने उसकी बात का मतलब नहीं समझा, मगर बहरोज खुद जानता था अब कुछ बदलने लगा था। दिल, सोच और शायद जज्बे भी। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई। वही बहरोज जो अभी चंद लम्हे पहले परवीन की शिरकत पर भड़क रहा था, अब मेज की दूसरी तरफ साकित बैठा था। परवीन के अल्फाज कमरे में ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने बंद कमरों में हवा भर दी हो, पुरएतमाद, मुहज़्ज़िब और गैर मुतवक्को। वेल मिस्टर एंडरसन, परवीन ने फाइल बंद करते मुस्कुराकर कहा, इफ योर कंपनी एग्रीज टू आवर टर्म्स, आई कैन अश्योर यू अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट। क्लाइंट जो अब तक थोड़ी बेरुखी से बैठा था, फौरन सीधा होकर बैठ गया। इम्प्रेसिव, यू हैव गॉट समवन वेरी स्मार्ट हेयर मिस्टर शेरोज। शेरोज आफंदी की आंखों में फख्र की चमक आई। वो पीछे टेक लगाकर बोला, शी इज वन ऑफ आवर न्यूएस्ट रिक्रूट्स एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। बहरोज ने नजरें चुराई। दिल के अंदर कुछ हिल सा गया। पहली बार उसे लगा शायद वो उस लड़की को गलत समझ रहा था। मीटिंग खत्म हुई तो सब लोग मुस्कुराते हुए उठे। क्लाइंट ने जाते हुए परवीन का हाथ थामा। यू हैव गॉट पोटेंशियल मिस परवीन, होप टू सी यू इन लंदन सून। परवीन ने मुहज़्ज़िब अंदाज में सर हिलाया। थैंक यू सर। दरवाजा बंद होते ही कमरे में खामोशी छा गई। परवीन ने फाइल समेटना शुरू की। बहरोज के लब हिले, मगर आवाज किसी और लहजे में निकली। तुमने इंग्लिश कहां से सीखी? परवीन ने सर उठाया, हैरत से मुस्कुराई। इसी मुल्क में जहां आप रहते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि मैंने अपनी खामोशी में सीखा है और आपने अपनी बड़ाई में भूल दिया है। बहरोज कुछ बोल ना सका। यह जवाब तेज नहीं था, मगर सीधा जाकर लगा था। अगले चंद दिनों में सब कुछ बदलने लगा। परवीन अब कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने लगी। क्लाइंट्स खुद उससे राब्ता करते और शेरोज अफंदी अक्सर बहरोज से कहते, बेटा तुम्हें परवीन से सीखना चाहिए, उसमें लगन है, तुम में जिद। और बहरोज सिर्फ खामोश रह जाता, मगर दिल के अंदर हलचल बढ़ती जा रही थी। वो मानना नहीं चाहता था कि वो उस लड़की से मुतासिर हो रहा है जिसे वो गंवार कहकर बुलाता था। एक शाम वो कैफे में बैठा था जब परवीन आई। ऑफिस में सब जा चुके थे। उसके हाथ में फाइल थी। ये रिपोर्ट कल सुबह डैड को देनी है, मैं चाहती हूं आप एक नजर देख लें। बहरोज ने फाइल ली, मगर निगाहें फाइल पर नहीं, परवीन के चेहरे पर थी। पहली बार उसे लगा सादगी में भी खूबसूरती का एक रंग रखती है। परवीन ने उसकी नजरें महसूस की। कुछ गलत है रिपोर्ट में? नहीं। बहरोज ने जल्दी से नजरें झुकाई। सब ठीक है, तुम वाकई अच्छी हो परवीन। परवीन ने सर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूं सर। लफ्ज़ सर उसके दिल में तीर बनकर लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद ये फासला उसे खाने लगा है। अगले दिन कंपनी में जश्न का समा था।
परवीन के तैयार करदा मंसूबे पर एक गैर मुल्की कंपनी ने 5 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। शहरोज आफंदी ने सबके सामने परवीन को शाबाश दी। परवीन बेटी, आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। सब तालियां बजा रहे थे। बहरोज पीछे खड़ा खामोश देखता रहा। दिल में कहीं एक अनजान एहसास ने जन्म लिया। हसद भी नहीं, गरूर भी नहीं, बल्कि एक अजीब सी कशिश। शाम को ऑफिस खाली होने के बाद बहरोज ने खुद परवीन को रोका। कॉफी पियोगी? परवीन ने चौंक कर देखा। आप मेरे साथ? हाँ, शायद अब तुम्हें वो गंवार नहीं लगती जैसे तुम समझते थे, बहरोज ने मुस्कुराकर कहा। परवीन ने हल्का सा कहा लगाया। नहीं सर, अब तो लगता है आप बदल गए हैं। बदल गया हूं या तुमने बदल दिया? बहरोज की आवाज मध्यम हुई। परवीन लम्हा भर को खामोश रही, फिर बोली, शायद हम सब वक्त के साथ बदल जाते हैं सर। वो रात बहरोज के लिए पहली थी जब वो देर तक सो ना सका। खिड़की के बाहर चांदनी फैली थी और दिल के अंदर कोई नया जज्बा जन्म ले चुका था। एक ऐसा जज्बा जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था, मगर बहरोज अब भी बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। रात की गुफ्तगू, परवीन की मुस्कुराहट और उसके कहे हुए चंद सादा मगर गहरे अल्फाज अब भी जहन में गूंज रहे थे। शायद हम सब वक्त के साथ बदल जाते हैं सर। वो उठ बैठा, खुद पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते बोला, वाकई मैं बदल रहा हूं। दफ्तर पहुंचा तो माहौल कुछ मुख्तलिफ लगा। परवीन अपनी मेज पर मसरूफ थी। बालों की एक लट बार बार चेहरे पर आती और वो उसे नरमी से पीछे कर देती। बहरोज के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े। गुड मॉर्निंग, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। परवीन ने चौंक कर देखा। गुड मॉर्निंग सर, आज आप काफी खुश लग रहे हैं। शायद तुम्हारी वजह से। ये अल्फाज ज़बान पर आते आते रुक गए। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, मगर दिल का बोझ कुछ हल्का जरूर हुआ। दिन गुजरते गए। परवीन के प्रोजेक्ट्स कामयाब होने लगे और कंपनी का नाम तेजी से बढ़ने लगा। शहरोज आफंदी अक्सर उसकी तारीफ करते। बहरोज, परवीन में कुछ खास है, उससे सीखने की कोशिश करो। पहले बहरोज को यह जुमला चुभता था, लेकिन अब उसे बुरा नहीं लगता था, बल्कि अंदर कहीं सुकून सा मिलता, जैसे फख्र हो कि वो लड़की उनकी टीम में है। एक दोपहर कंपनी में एक नया मुलाजिम आया, फराज अहमद, जिसे परवीन के प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंट के तौर पर रखा गया था। लंबा कद, एतमाद भरी मुस्कुराहट और बातों में चालाकी। परवीन ने फराज से हाथ मिलाया। वेलकम टू द टीम। फराज ने खुश अखलाकी से जवाब दिया, थैंक यू मैम, आपके साथ काम करना मेरे लिए एजाज है। बहरोज ये मंजर दूर से देख रहा था। दिल में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई, अजीब सा एहसास जैसे किसी ने उसकी खामोश दुनिया में हल्की सी रग छेड़ दी हो। अगले चंद हफ्तों में फराज और परवीन अक्सर साथ दिखाई देते। प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स या दोपहर की चाय, जहां परवीन होती वहां फराज भी होता। बहरोज ने महसूस किया कि परवीन के चेहरे पर एक नई चमक है। वो हंसती थी, मुस्कुराती थी और कभी कभी फराज की बातों पर हल्का सा कहकहा लगाती। ये मंजर बहरोज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। एक दिन वो खुद पर काबू ना रख सका। परवीन, तुम और फराज एक साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहे हो, कोई खास वजह? परवीन ने मुस्कुराकर कहा, सर, हम बस काम कर रहे हैं, हर बात के पीछे मतलब ढूंढना जरूरी नहीं होता। हाँ, शायद तुम्हारे लिए नहीं, मगर मेरे लिए जरूरी है। बहरोज के लहजे में अनजान तलखी थी। परवीन ने नरम आवाज में कहा, सर, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? करता हूं, बहरोज ने आहिस्ता कहा, शायद जरूरत से ज्यादा करने लगा हूं। परवीन चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर नजरें झुकाकर बोली, सर, आप एक अच्छे इंसान हैं, मगर हमें अपने दायरे नहीं तोड़ने चाहिए। ये जुमला बहरोज के दिल पर नश्तर बनकर लगा। उसने कुछ कहे बगैर दफ्तर छोड़ दिया। अगले दिन परवीन दफ्तर नहीं आई। शहरोज आफंदी ने बताया वो फराज के साथ एक प्रेजेंटेशन के लिए कराची गई है। बहरोज ने चुपचाप सर हिला दिया, मगर दिल के अंदर आग भड़क उठी। उस रात वो देर तक खिड़की के पास बैठा रहा।
सामने चमकता चांद उसे परवीन की मुस्कुराहट की तरह लग रहा था, खूबसूरत मगर दूर। काश तुम जानती परवीन कि तुमने जिस दीवार के पीछे खुद को छुपा रखा है, मैं हर ईंट के पीछे तुम्हारा चेहरा ढूंढ रहा हूं। 2 दिन बाद जब वो वापस आई, बहरोज ने खुद को पुरसकून जाहिर करने की कोशिश की। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। फराज ने जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, क्लाइंट बहुत खुश हुए। बहरोज ने बस इतना कहा, अच्छा है, तुम खुश हो? परवीन ने उसके लहजे की गहराई महसूस की मगर खामोश रही। उसी शाम बहरोज अपने वालिद के ऑफिस में बैठा था जब शहरोज आफंदी ने कहा, बेटा मुझे लगता है तुम्हें अब कंपनी की जिम्मेदारियों के साथ साथ दिल के फैसले भी समझने चाहिए। बहरोज ने चौंक कर देखा, आपका मतलब? परवीन एक काबिल लड़की है, मैं चाहता हूं तुम उसे अपने साथ देखो, हमेशा के लिए। यह सुनकर बहरोज के दिल की धड़कन तेज हो गई। डैड, आप जानते हैं वो मुझे पसंद नहीं करती। मोहब्बत वक्त लेती है बेटा, मगर अगर तुम्हारा दिल साफ है तो एक दिन वो तुम्हें समझ लेगी। रात को बहरोज ने फैसला कर लिया, अब वो खामोश नहीं रहेगा। वो कल परवीन से दिल की बात कहेगा। मगर अगली सुबह जो खबर उसने सुनी, उसने सब कुछ बदल दिया। रिसेप्शन से आवाज आई, सर, मिस परवीन और फराज अहमद की मंगनी हो गई है। कल शाम खानदान में तकरीब थी। बहरोज के हाथ से फाइल गिर गई। दुनिया जैसे लम्हा भर को रुक गई थी। रात के अंधेरे में शहर की रोशनियां मध्यम लग रही थी। बहरोज की आंखों के सामने बार बार वही जुमला घूम रहा था, परवीन और फराज की मंगनी हो गई है। वो ऑफिस की छत पर जाकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे, मगर अंदर की आग सर्द न हो रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया परवीन? कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता कि मैं क्या चाहता हूं। वो खुद से बड़बड़ाया, मगर आवाज हवा में तहलील हो गई। अगले दिन वो दफ्तर पहुंचा तो हर कोई फराज और परवीन को मुबारकबाद दे रहा था। परवीन के चेहरे पर हल्की सी शर्म और खुशी मिली जुली थी। बहरोज ने उसे दूर से देखा और नजरें चुरा ली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जीतने वाला भी कभी हार जाता है। मुबारक हो, आखिरकार उसने आहिस्ता से कहा। परवीन ने चौंक कर देखा। शुक्रिया सर। बहरोज ने मुस्कुराहट जबरदस्ती चेहरे पर सजाई। उम्मीद है तुम खुश रहोगी। परवीन ने नरमी से कहा, इंशाल्लाह सर। जिंदगी में कुछ फैसले दिल से ज्यादा दिमाग से करने पड़ते हैं, और कुछ फैसले दिल कर लेता है, चाहे दिमाग कुछ भी कहे। बहरोज ने धीरे से कहा और ऑफिस से निकल गया। उस रात वो सीधा अपने वालिद के पास गया। शहरोज आफंदी मेज पर रिपोर्ट्स देख रहे थे। बहरोज ने आहिस्तगी से कहा, डैड, मैंने जिंदगी में बहुत फैसले किए, लेकिन आज मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। शहरोज आफंदी ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत में हारने वाला हमेशा जीतता है बेटा। अगर नीयत सच्ची हो तो वक्त खुद फैसला बदल देता है। बहरोज खामोश रहा, मगर आंखों में नमी आ गई। दिन गुजरते गए। परवीन अब भी अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ रहती, मगर बहरोज के लिए हर दिन एक इम्तिहान था। वो कोशिश करता कि खुद को मसरूफ रखे, लेकिन हर मीटिंग, हर कॉरिडोर में परवीन की आवाज गूंजती रहती। एक दिन फराज उसके ऑफिस में आया। सर, मैं चाहता हूं परवीन को एक नया प्रोजेक्ट दिया जाए। वो चाहती है कि वो लीड करे ताकि कंपनी को नई मार्केट में ले जा सके। बहरोज ने नजरें उठाकर फराज की आंखों में देखा। तुम चाहो तो दुनिया भी उसके कदमों में डाल दो फराज। फराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हम दोनों मिलकर कंपनी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं सर। बहरोज ने अंदरूनी कर्ब छुपाते हुए बस इतना कहा, उम्मीद है तुम उसके लिए वो सब करोगे जो वो डिजर्व करती है। चंद दिन बाद एक तकरीब थी जहां शहरोज ग्रुप को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मिलने वाला था। परवीन वहां शानदार लिबास में आई। सफेद साड़ी में वो वाकई किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। जब वो स्टेज पर अवार्ड लेने गई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था और बहरोज दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ये कामयाबी तुम्हारा हक है परवीन। काश मेरा दिल भी इतना समझदार होता जितना तुम्हारा दिमाग है। तकरीब के बाद
बहरोज ने हिम्मत करके उससे बात की। परवीन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? परवीन ने इस बात में सर हिलाया। जी सर, कहिए। बस सर ना कहो आज, बहरोज कहो। परवीन खामोश रही। बहरोज के लहजे में वो गहराई थी जो बरसों की खामोशी तोड़ रही थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूं परवीन। नहीं, पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूं। शायद बहुत पहले से, मगर मान नहीं पाया। और आज जब तुम किसी और की हो चुकी हो, तब एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं। परवीन की आंखों में हैरत तैर गई। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर बोली, बहरोज, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन दिल का फैसला बदलना आसान नहीं होता। फराज मेरा इंतखाब है और मैं उस पर यकीन रखती हूं। बहरोज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, काश मैं तुम्हारा यकीन बन सकता, शायद किसी और जिंदगी में। परवीन ने धीरे से कहा और चल दी। बहरोज ने उसे जाते देखा और दिल के अंदर एक खामोश सी चीख दब गई। मोहब्बत ने अपनी पहली हार कबूल कर ली थी। दिन हफ्तों में बदल गए। फराज और परवीन की शादी की तारीख तय हो गई। पूरा दफ्तर खुशी में शरीक था, सिवाय एक शख्स के, जो अपने केबिन के बंद दरवाजे के पीछे खामोश बैठा प्रेजेंटेशन की फाइल में आंसू गिरा रहा था। ढोल की आवाजें, रोशनियों की चमक और खुशी से लबरेज चेहरे। परवीन आज दुल्हन बनी थी। सुर्ख जोड़े में वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। शहरोज आफंदी, बहरोज और पूरी कंपनी के लोग शादी में शरीक थे। बहरोज एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में तूफान। परवीन ने उसकी तरफ निगाह डाली। एक लम्हे को जैसे वक्त थम गया, फिर उसने नजरें झुका ली। शादी की रसूमात खत्म हुई और परवीन रुखसत हो गई। बहरोज ने बस इतना कहा, खुश रहना परवीन, और वो खुद अंदर ही अंदर टूट गया। वक्त गुजरता गया। पहले पहल सब ठीक लगता रहा। परवीन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें डालती, खुश चेहरों, मुस्कुराहटों और मोहब्बत भरी पोस्ट के साथ। लेकिन 3 माह बाद सब कुछ बदलने लगा। फराज अक्सर रात देर से घर आता, फोन पर मुस्कुराता, कभी बातें छुपाता और कभी झूठ बोलता। परवीन ने कई बार पूछा, फराज, तुम किससे बात कर रहे थे? काम के सिलसिले में? तुम फजूल सवालात क्यों करती हो? फराज का लहजा अब बदलने लगा था। एक रात जब फराज ना आया, परवीन की नींद उड़ गई। रात के 3 बजे दरवाजा खुला। वो शराब की बू में बसा हुआ घर में दाखिल हुआ। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? परवीन ने रोते हुए कहा। फराज ने गुस्से से कहा, मेरे मामलों में दखल देना छोड़ दो परवीन, तुम सिर्फ एक बीवी हो, मालिक नहीं। ये पहला थप्पड़ नहीं था। पहली बार सिर्फ आवाज गिरी थी, अब इज्जत भी गिरने लगी थी। अगली सुबह परवीन ऑफिस गई। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में नमी छुपी थी। बहरोज ने फौरन महसूस कर लिया। सब ठीक है परवीन? जी सर, बिल्कुल ठीक। झूठ बोलना तुम्हें नहीं आता, बहरोज ने नरमी से कहा। कभी कभी सच बताना भी दिल को हल्का कर देता है। परवीन ने नजरें चुरा ली। अगर सब जानकर भी कुछ ना बदल सके तो क्या फायदा सच बोलने का? बहरोज खामोश हो गया, लेकिन दिल में एक फैसला कर चुका था, अब वो परवीन को तनहा नहीं छोड़ेगा। चंद दिन बाद बहरोज ने फराज पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक शाम उसने अपनी गाड़ी में बैठकर फराज का पीछा किया। फराज एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो साथ एक लड़की थी। हाथों में हाथ डाले वो बेफिक्री से हंस रहे थे। बहरोज ने मोबाइल निकालकर तस्वीरें ले ली। दिल में गुस्सा था, मगर आंखों में दुख। अगले दिन वो सीधा परवीन के घर गया। परवीन ने दरवाजा खोला। आप यहां? हाँ, एक दोस्त की हैसियत से, बहरोज ने आहिस्तगी से कहा और मोबाइल आगे बढ़ाया। ये देखो। परवीन के हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर फराज और वो लड़की हंस रहे थे, एक दूसरे के कंधे से लगे हुए। परवीन के लब कपकपाए। ये झूठ है, ये फराज नहीं हो सकता। काश ये झूठ होता परवीन, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है।
परवीन रोने लगी। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, ये सजा क्यों मिली मुझे? बहरोज ने नरमी से कहा, यह सजा नहीं, सबक है। मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए, वरना जो दुख मिलता है वो इंसान को तोड़ देता है। चंद दिन बाद परवीन ने फराज से बात की। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो फराज? मैंने तुम पर भरोसा किया। फराज हंसा। परवीन, तुम बहुत सादा हो। जिंदगी सिर्फ एक औरत के साथ नहीं गुजारी जाती। मैं आजाद हूं और ये मेरी जिंदगी है। परवीन ने कांपती हुई आवाज में कहा, तो फिर तुम्हें तलाक देने में क्या मसला है? फराज ने सिगरेट सुलगाया। तलाक? मुझे तुमसे जान छुड़ानी नहीं है। तुम मेरे लिए एक इज्जत का चेहरा हो जिसके पीछे मैं अपनी असल जिंदगी जी सकता हूं। परवीन ने वो रात आंसुओं में गुजारी। जब सूरज निकला उसके दिल में एक फैसला था, वो अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। अगले दिन वो सीधा बहरोज के पास गई। मैं थक गई हूं बहरोज, मैं अब इस रिश्ते को नहीं निभा सकती, मगर वो तलाक नहीं दे रहा। बहरोज ने कहा, फिक्र ना करो, अब मैं देखता हूं, तुम अकेली नहीं हो। परवीन ने पहली बार उसकी तरफ एतमाद से देखा। क्या तुम वाकई मेरे साथ होगे? हर कदम पर परवीन। ये वो लम्हा था जब बहरोज की मोहब्बत फिर से सांस लेने लगी थी, लेकिन अब ये मोहब्बत नाजुक नहीं, मजबूत बन चुकी थी। उस रात बहरोज ने फराज के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू किए। वो उसके दोस्तों, कोलीग्स और पुरानी गर्लफ्रेंड्स तक पहुंचा। एक एक करके उसने सबकी बातें रिकॉर्ड की। प्यार के वादे, धोखे और फराज की असलियत। एक हफ्ते बाद बहरोज ने वो तमाम शवाहिद परवीन के सामने रख दिए। परवीन ने खामोशी से सब कुछ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अब वक्त है कि वो जान ले, मैं वो सादा परवीन नहीं रही। अगले दिन फराज के दफ्तर में हंगामा बरपा हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड्स ने उसके खिलाफ शिकायतें दायर कर दी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, चैट्स और वीडियोस वायरल हो गई। कंपनी ने उसे फौरन बर्खास्त कर दिया। फराज दीवार से लग गया। उसने बहरोज से राब्ता किया। तुमने ये सब किया है ना? बहरोज ने पुरसकून लहजे में कहा, नहीं फराज, ये तुम्हारे किए का नतीजा है। फराज चिल्लाया, मुझे तलाक चाहिए। मुझे 5 करोड़ दो, फिर परवीन को आजाद कर दूंगा। बहरोज ने जवाब दिया, 5 करोड़? अगर परवीन की खुशी इसी में है तो हां, मैं दूंगा। शहर की फिजा में सर्दी उतरने लगी थी। धूप हल्की मगर तेज हवा में खुनकी थी और बहरोज के कदम किसी फैसले की तरफ बढ़ रहे थे। उसके सामने परवीन का चेहरा बार बार आ रहा था। वो लम्हा जब उसने तलाक की बात की, वो लरसती हुई आंखें और फिर वो खामोशी जो किसी चीख से ज्यादा तेज गूंजी थी। फराज से मुलाकात तय हो चुकी थी। शाम के वक्त एक पोश रेस्टोरेंट में, वो जगह जहां फराज अक्सर अपने बिजनेस क्लाइंट से मिलता था। अब वहीं उसका हिसाब होना था। बहरोज ने मेज पर फाइल रखी। ये वो तमाम सबूत हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस, तस्वीरें, मैसेजेस और वो वीडियोस जिनमें तुम अपने ही वादे तोड़ते दिखाई देते हो। फराज ने सिगरेट सुलगाया और तंजिया हंसा। तुम्हें लगता है तुम इन चीजों से मुझे बर्बाद कर दोगे? मैंने बदनामी देखी है बहरोज, अब मुझसे शर्म की उम्मीद मत रखो। बहरोज पुरसकून लहजे में बोला, शर्म तुमसे नहीं, इंसाफ से जुड़ी है। परवीन ने सिर्फ इज्जत मांगी है, तुमसे मोहब्बत नहीं। बस एक दस्तखत करो और सब खत्म। फराज की आंखों में लम्हे भर के लिए झटका सा आया। और अगर मैं ना करूं तो ये फाइल सिर्फ पुलिस के पास नहीं जाएगी बल्कि मीडिया तक भी पहुंचेगी। बहरोज ने फाइल बंद करते हुए कहा, फिर तुम्हें सिर्फ इज्जत नहीं, नाम भी खोना पड़ेगा। चंद लम्हे की खामोशी के बाद फराज ने दस्तखत किए। कलम का हर हरकत करता हर्फ गोया किसी कैद के टूटने की सदा बन गया। कागज पर तलाक के लफ्ज के नीचे जब बहरोज की उंगलियों ने मोहर लगाई तो ऐसा लगा जिसे परवीन की सांसें आजाद हो गई हों। अगले दिन सुबह सवेरे परवीन अदालत पहुंची। चेहरे पर सुकून था, आंखों में रोशनी। वो पहली बार अपनी मर्जी से चल रही थी।
किसी के नाम या साए से आजाद। अदालत के बाहर बहरोज खड़ा था। वो दूर से उसे देख रहा था। परवीन ने एक लम्हे को रुककर मुस्कुराहट दी, जैसे कह रही हो मैं आजाद हूं और तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। बहरोज ने सिर्फ सर हिलाया। कोई लफ्ज नहीं, मगर एहसास बहुत था। परवीन ने तलाक के बाद अपनी नौकरी पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वो अब बदल चुकी थी। वही लड़की जो पहले दूसरों के फैसलों में खो जाती थी, अब अपने फैसले खुद करती थी। उसने फाउंडेशन का नया प्रोजेक्ट संभाला, औरत, इख्तियार और इज्जत के नाम से। वो औरतों के हुकूक के लिए काम करने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल कैंपेन्स, वर्कशॉप्स, वो हर जगह मुतहरिक थी। एक दिन कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने सवाल पूछा, मिस परवीन, आपको क्या लगता है कि एक नाकाम रिश्ता औरत की पहचान कम कर देता है? परवीन ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, रिश्ता नहीं, खुद से हार जाना इंसान की पहचान कम करता है। मैं हारी नहीं, मैं बदली हूं और यही मेरी जीत है। हॉल तालियों से गूंज उठा। परवीन के अल्फाज जैसे हर औरत के दिल में उम्मीद बनकर उतरे। शाम को वो ऑफिस से निकली तो बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर लाइट्स चमक रही थी, हवा में नमी थी। वो पार्किंग की तरफ बढ़ी तो सामने बहरोज खड़ा था, छतरी हाथ में, चेहरे पर वही नरम मुस्कुराहट। तुम्हें अभी भी आदत नहीं गई भीगने की? बहरोज ने छतरी आगे करते कहा। परवीन ने हंसकर कहा, अब तो बारिश से डर नहीं लगता। बचपन में अम्मी कहती थी, गीली जमीन खुशबू देती है। अब लगता है इंसान का दिल भी वैसा ही होता है। जब दुख के बाद सुकून की बारिश बरसे तो अंदर खुशबू सी भर जाती है। दोनों कुछ लम्हे खामोश चलते रहे। बारिश में वो वक्त जैसे किसी नई कहानी का आगाज बन गया। कुछ दिन बाद फाउंडेशन की एक बड़ी तकरीब थी। परवीन को साल की बाहिम्मत खातून के अवार्ड से नवाजा जा रहा था। हॉल में सहाफ़ी, मेहमान और समाजी शख्सियात मौजूद थी। परवीन स्टेज पर गई तो लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी। एक एतमाद, एक रोशनी, एक नरमी। उसने कहा, मैं आज किसी कामयाबी का नहीं, एक सफ़र का अवार्ड ले रही हूँ। ये सफ़र खौफ से हौसले तक, खामोशी से आवाज़ तक और कैद से आज़ादी तक का है। मैं उन सब औरतों के नाम ये लम्हा करती हूँ जो टूटने के बाद भी जीती हैं। बहरोज पीछे खड़ा सुन रहा था। उसकी आंखों में फख्र था और दिल में एक दुआ कि परवीन अब कभी पीछे मुड़कर ना देखे। तकरीब के बाद दोनों बाहर लॉन में आए। आसमान साफ था और चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। परवीन ने बहरोज की तरफ देखा। कभी कभी सोचती हूं अगर तुम ना होते तो शायद मैं हिम्मत ना कर पाती। बहरोज ने नरमी से जवाब दिया, तुम में पहले भी हिम्मत थी परवीन, मैंने सिर्फ आईना दिखाया था। असल सफर तुमने खुद तय किया है। परवीन मुस्कुराई। और अगर मैं कहूं कि आईना ही सब कुछ बदल देता है? बहरोज ने नजरें हटाते हुए कहा, मैं फिर भी वही बहरोज हूं जो तुम्हारे सुकून को तुमसे ज्यादा चाहता है। मोहब्बत हमेशा पास रखने के लिए नहीं होती, कभी कभी ये सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आती है। परवीन ने धीरे से कहा, और कभी कभी वो रास्ता दिल में रह जाता है। हवा में हल्की खुनकी थी, मगर उस लम्हे दोनों के दरमियान एक नरमी, एक खामोश मोहब्बत बह रही थी, बगैर किसी वादे के, बगैर किसी दावे के। चंद हफ्ते बाद बहरोज को बैरून मुल्क प्रोजेक्ट मिल गया। फाउंडेशन ने उसे रीजनल डायरेक्टर के तौर पर तैनात किया। रुखसती के दिन ऑफिस में सन्नाटा था। परवीन ने आते ही पूछा, सुना है जा रहे हो? बहरोज ने हल्का सा सर झुकाया। हाँ, शायद अब वक्त है कि नई मंजिलें तलाश की जाएं। तुम यहाँ बहुत बेहतर काम कर रही हो। मुझे खुशी है कि तुम वो सब बन गई हो जिसका तुम्हें हक था। परवीन ने धीरे से कहा, और अगर मैं कहूं कि तुम जाकर भी यहीं रहोगे, मेरी दुआओं में, मेरी कहानी में? बहरोज ने मुस्कुराकर कहा, कहानियां कभी खत्म नहीं होती परवीन, बस किरदार बदल जाते हैं। वो रुखसत हो गया। पीछे रह गई खामोशी और वो खुशबू जो सिर्फ सच्चे जज्बों से आती है। कुछ महीने गुजर गए।
پروین اب اپنی فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر بن چکی تھی۔ ایک دن ای میل میں ایک پیغام آیا، سبجیکٹ فار دا گرل ہو لرن ٹو فلائی۔ نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، بارش کے بعد زمین ہمیشہ نرم ہو جاتی ہے، لیکن وہی زمین اگلی بہار کے پھول اگاتی ہے۔ بہروز۔ پروین کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کے بیچ سے سورج نکل رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، شاید اب زندگی واقعی بدل گئی ہے۔ شام کو جب وہ فاؤنڈیشن کے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، ایک بچی آ کر بولی، میڈم یہ گلاب آپ کے لیے بہروز صاحب نے بھیجا ہے۔ پروین نے گلاب لیا، سرخ، تازہ اور خوشبو سے بھرا۔ ساتھ ایک پرچی تھی، ہر کہانی کو اختتام نہیں، کبھی کبھی سکون چاہیے ہوتا ہے، اور تم وہ سکون بن گئی ہو۔ پروین نے آنکھیں بند کی۔ دل کے کسی گوشے میں بہروز کی مسکراہٹ گونجی، پھر ہوا میں سرگوشی سے ہوئی۔ محبت ہمیشہ رہتی ہے، چاہے فاصلوں میں چھپ جائے۔ اس رات پروین نے اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، میں نے سیکھ لیا ہے کہ محبت کمزوری نہیں ہوتی اگر وہ خودداری سے جڑی ہو۔ میں اب صرف ایک عورت نہیں، میں وہ انسان ہوں جس نے ہار کر جیتنا سیکھا۔ بہروز، تم میرے سفر کی سب سے خوبصورت منزل تھے، چاہے تم اب اس راہ پر نہ ہو۔ قلم رک گیا، باہر آسمان پر ستارے جھلملانے لگے۔ زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی، نہ کسی رنج کی گونج، نہ کسی ادھورے وعدے کی چبھن۔ وقت ہمیشہ بہتا رہتا ہے، اس کے ساتھ یادیں، چہرے اور احساسات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ پروین کے لیے پچھلے چند سال کسی امتحان سے کم نہیں تھے، مگر اب وہ ان سب امتحانوں سے گزر کر روشنی کے مقام پر تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس کی فاؤنڈیشن اب ملک کی سب سے معتبر تنظیموں میں شمار ہوتی۔ اس کے کام کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا تھا۔ وہ ان عورتوں کے لیے امید کی علامت بن چکی تھی جنہیں کبھی معاشرہ خاموشی سکھاتا تھا۔ پروین اب پہلے والی پروین نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر باتوں میں وقار، آنکھوں میں احساس تھا مگر ساتھ ایک ٹھہراؤ بھی۔ وہ جان چکی تھی کہ محبت صرف جذبہ نہیں بلکہ قربانی، صبر اور وقت کی پہچان ہے۔ اس روز اسے بین الاقوامی ویمن لیڈرشپ کانفرنس میں شرکت کے لیے ترکی جانا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر بادلوں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ پروین کے ہاتھ میں فاؤنڈیشن کی رپورٹ تھی مگر نگاہیں کہیں دور بھٹک رہی تھی۔ بہروز کی یاد اب تک کبھی کبھار اس کے دل میں دروازے پر ہلکے سے دستک دے جاتی تھی، نہ دکھ کے ساتھ بلکہ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ۔ استنبول ایئرپورٹ پر اترتے ہی ہوا میں بہار کی خوشبو تھی۔ وہ ہوٹل پہنچی، اگلے دن کی کانفرنس کے لیے تیاری کی، پھر بالکنی میں آ کر بیٹھ گئی۔ نیچے نیلا سمندر پھیل رہا تھا اور دور کہیں اذان کی آواز آ رہی تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ اسی لمحے فون بجا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر چمک رہا تھا۔ ہیلو مس پروین، میں کانفرنس کمیٹی سے بول رہا ہوں۔ کل کے سیشن میں آپ کے ساتھ ایک پاکستانی اسپیکر بھی شریک ہوں گے، مسٹر بہروز شاہ۔ پروین کی سانس جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ کیا نام لیا آپ نے؟ جی بہروز شاہ، وہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے ریجنل ہیڈ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا وہ خاص طور پر آپ کے پینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پروین نے خاموشی سے فون بند کیا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی پرانا باب دوبارہ کھلنے لگا۔ 3 سال بعد وہ شخص جو کبھی اس کی زندگی کی سب سے بڑی الجھن تھا، اب اس کے سامنے آنے والا تھا۔ اگلے دن کانفرنس ہال میں ہجوم تھا، ہر طرف لوگ، میڈیا، لائٹس اور پروین کے دل کی دھڑکنیں۔ جب وہ سٹیج پر گئی، اس کے ساتھ میز کی دوسری طرف بہروز بیٹھا تھا۔ وقت نے اسے بھی بدل دیا تھا، چہرے پر نرمی، آنکھوں میں تجربہ اور لہجے میں سکون۔ کوئی غرور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف وقار۔ پروین نے نظریں جھکائی۔ 3 سال کی مسافت کے بعد یہ لمحہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ پروگرام کے دوران دونوں نے عورتوں کے معاشرتی کردار پر بات کی۔ بہروز نے کہا، کامیاب عورت وہ نہیں جو مرد سے مقابلہ کرے، بلکہ وہ جو خود کو پہچان لے، اور اگر کوئی مرد واقعی سمجھنے والا ہو تو وہ اس پہچان پر فخر کرے گا، خوف نہیں۔
परवीन ने धीरे से कहा, और वो मर्द ही समझदार होता है जो औरत के हौसले से डरता नहीं बल्कि उसे परों की ताकत देता है। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उन दोनों के बीच एक खामोश गुफ्तगू चल रही थी, निगाहों में, सांसों में और उस वक्त के बहाव में। तकरीब खत्म हुई, सब लोग तस्वीर खिंचवा रहे थे। बहरोज आहिस्ता आहिस्ता परवीन के करीब आया। क्या तुम मुझसे 2 मिनट मिल सकती हो? परवीन ने सर हिलाया और वो दोनों लॉन में आ गए। इस्तांबुल की शाम सर्द मगर पुरसकून थी। दूर दरिया पर लाइट झिलमिला रही थी। कुछ देर दोनों खामोश रहे, फिर बहरोज ने कहा, मैंने तुम्हें उस दिन जाते हुए नहीं रोका क्योंकि चाहता था तुम अपनी कहानी खुद लिखो। आज तुम्हें देखकर लगा तुमने वो कहानी मुकम्मल कर ली है। परवीन ने नरम लहजे में कहा, कहानियां मुकम्मल तो हो जाती हैं, लेकिन कुछ किरदार दिल के अंदर रह जाते हैं। तुम भी वही किरदार हो बहरोज। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे कभी शक नहीं था कि तुम ये कहानी खूबसूरत अंजाम तक ले जाओगी। मैं सिर्फ चाहता था तुम अपनी शर्तों पर जियो, और देखो तुमने वो कर दिखाया। परवीन ने आसमान की तरफ देखा। काश उस वक्त मैं तुम्हें समझ पाती। मैंने तुम्हें गलत वक्त में ठुकरा दिया और सही वक्त में चाहा, लेकिन जिंदगी हमेशा वक्त पर नहीं मिलती ना। बहरोज ने गहरी सांस ली। मोहब्बत कभी वक्त की मोहताज नहीं होती परवीन, वो बस अपनी जगह बदल लेती है। दिल से दुआ में, इंतजार से यकीन में। मैंने तुम्हें कभी खोना नहीं चाहा, बस तुम्हें आजाद देखना चाहा। परवीन की आंखों में नमी आ गई। और मैंने आजादी पाई, लेकिन तुम्हारे दिए हुए यकीन से। दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर बहरोज ने छोटे से लिफाफे में कुछ निकाल कर उसके हाथ पर रखा। ये क्या है? तुम्हारे लिए। परवीन ने खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी जिस पर कुंदा था, फॉर द गर्ल हु लर्न टू फ्लाई। परवीन की सांस लरस गई। बहरोज, ये वही जुमला है जो तुमने आखिरी ईमेल में लिखा था? बहरोज ने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुम उड़ना सीख चुकी हो, और आज तुम्हारे साथ खड़े होकर मैं खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा हूं। यह अंगूठी किसी वादे की नहीं, बस याद की है कि कभी एक कहानी थी जो खामोशी में मुकम्मल हुई। रात गहरी हो चुकी थी। बहरोज ने परवीन को होटल के दरवाजे तक छोड़ा। रुखसत होते वक्त परवीन ने कहा, क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? बहरोज ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत का यही तो हुस्न है कि वो खत्म नहीं होती, चाहे फासले कितने ही बढ़ जाएं। याद का एक जर्रा हमेशा साथ रहता है। जब कभी तुम्हें यकीन कम पड़े, ये अंगूठी देख लेना। याद आ जाएगा कि कोई तुम पर फख्र करता है। परवीन के होंठों पर खामोश मुस्कुराहट थी। शुक्रिया बहरोज, तुमने मुझे जिंदगी जीने का नया मतलब सिखाया। वो मुड़ा और चल दिया। हवा में उसकी खुशबू और कदमों की चाप लंबे वक्त तक बाकी रही। परवीन दरवाजे पर खड़ी रही जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गया। परवीन वापस लाहौर आ गई थी। उसकी फाउंडेशन अब बैनुल अक़वामी सतह पर काम कर रही थी। उस दिन एक नई ब्रांच का इफ्तिताह था। मीडिया, कैमरे, लोग सब जमा थे। स्टेज पर जब उसने तकरीर शुरू की, आवाज में वही सुकून था जो बहरोज ने कभी देखा था। मैं ये फाउंडेशन एक ऐसे शख्स के नाम करती हूँ जिसने मुझे सिखाया कि जख्मों से रोशनी भी जन्म लेती है। ये इदारा उन सब के लिए है जो हार कर जीतना चाहते हैं। लोगों ने तालियां बजाईं, मगर परवीन की आंखों में एक चमक थी, किसी याद की, किसी एहसास की। उसी लम्हे किसी ने आकर एक फूलों का गुलदस्ता दिया। कार्ड पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, बारिश के बाद भी जमीन महकती है, तुम वो खुशबू हो परवीन। नीचे दस्तखत, बहरोज। परवीन ने कार्ड सीने से लगा लिया। आंखों से एक नरम आंसू बहा, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो सुकून देती है, ना कि जुदाई का दुख। शाम के वक्त फाउंडेशन के लॉन में निकली। हवा में हल्की खुनकी थी, दरख्तों पर रोशनियों की कतारें और आसमान पर चांद मुकम्मल। वो बेंच पर बैठी डायरी खोली। आखिरी सफ़े पर लिखा, जिंदगी में कुछ लोग दुआ बनकर आते हैं और फिर वक्त उनको याद बनाता है। बहरोज, तुम मेरी दुआ भी थे और मेरी याद भी।
मैं आज भी तुम्हें महसूस करती हूं, हर उस लम्हे में जब जिंदगी मुस्कुराती है। उसने कलम बंद किया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और एक नरम हवा चली, जैसे बहरोज कहीं आसपास हो। दूर गली के मोड़ पर एक स्याह कार रुकी। खिड़की से हाथ निकला और हवा में वही सुर्ख गुलाब उछाला गया। परवीन ने चौंक कर देखा, कार जा चुकी थी। गुलाब उसकी गोद में गिरा और उसने धीरे से कहा, मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस रुख बदल लेती है। यहां कहानी खत्म नहीं बल्कि मुकम्मल हो गई। परवीन ने खुद को और बहरोज ने अपनी मोहब्बत को एक दूसरे में मुकम्मल कर दिया। मोहब्बत ने रिश्ता नहीं मांगा, बस एहतराम, एतमाद और याद की सूरत में हमेशा के लिए उन दोनों को जोड़ दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।